तो हमने लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन टू कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल किया था और मैंने आपको बताया था कि इससे पहले हमने जो कुछ पढ़ा है वो डिस्क्रीट है, बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक, पॉसॉन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल्स। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो कंटिन्यूस होता है और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में एरिया अंडर द कर्व 1 होता है बिकॉज इट्स प्रोबेबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज 1। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहलाता है जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होती है। So probability density function should always be greater than or equal to 0 because probability can never be negative. Area under the probability density function is always 1 because sum of all probabilities is always 1. Probability density function is expressed as limits minus infinity to infinity, that is 1. The probability of x is always the area within a specified range. ठीक है, the probability can only be found within a range. किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे probability 0 होती है क्योंकि एरिया नहीं होता, वो एक पॉइंट होता है। एरिया होगा तो probability होगी। Am I clear everyone? चलें एग्जाम्पल्स शुरू करते हैं। Okay, so the question is the height reached by water erupting from broken pipe is modeled by the following probability distribution function. F of x is x square upon k, where x lies between 1 and 10, 0 otherwise. Find the value of k. Please observe that if I integrate within the limits 1 and 10, x square upon k, the result will be 1. 1 upon k को बाहर निकाल दिया, 1 और 10 की लिमिट्स में x square is 1. Are you all with me? So this becomes 1 upon k, x cube upon 3, 10 and 1 is 1. Cross multiply कर दिया, 10 cube upon 3 minus 1 cube upon 3 is k. 1000 minus 1 is 999 upon 3 is k. K is 333. उसके बाद बोलता है सेकेंड पार्ट में sketch the probability density function. You just need to sketch this equation. When I will substitute 1 in this equation, the equation now has turned out to be f of x is x square upon k, k is 333. So when x is 1, it will be 1 upon 33333 somewhere here. And when x will be 10, it will be 10 square, that is 100 upon 3333. So it will be something like this. Within the limits 1 and 10. At 1, it was 1 upon 333. And at 10, it will be 100 upon 333. This is x. This is fx. Find the probability that the water reaches the height of at least 6 meters. At least 6 meters का क्या मतलब होता है? Probability of x is greater or equal to 6. Are you all with me? The question has a limit of 1 to 10. तो अगर मुझे greater or equal to 6 चाहिए, तो I basically need probability that x lies between 6 and 10. So I will integrate within the limit 6 and 10. X square upon k, that is 333. Am I clear? This turns out to be x cube upon 3 times of 333, 10 and 6, which is 10 cube upon 999 minus 6 cube upon 999. बताइए 784 upon 999. Which is equals to 0.785. All right, before I move on to the next question, the next concept is median, quartiles, and percentile in continuous random variables. Median 50% होती है वैल्यू, यानी probability of median is 0.5. Probability of median is 0.5. Probability of upper quartile
is 0.75. Probability of lower quartile is 0.25. So अगर कभी मुझे बोले कि मीडियन निकालो, तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी लीस्ट पॉसिबल वैल्यू है वहां से मीडियन तक एफ एक्स की प्रोबेबिलिटी विल बी 0.5, माइनस इन्फिनिटी से अपर क्वार्टाइल तक एफ एक्स विल बी 0.75, माइनस इन्फिनिटी से लोअर क्वार्टाइल तक एफ एक्स विल बी 0.25. और अगर परसेंटाइल है, लेट्स से 90th परसेंटाइल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन 90% का मतलब है 0.9. तो माइनस इन्फिनिटी टू एन एफ एक्स विल बी 0.9. 20th परसेंटाइल होगी तो माइनस इन्फिनिटी टू एन एफ एक्स विल बी 0.2. 30th परसेंटाइल होगी तो माइनस इन्फिनिटी से एन तक एफ एक्स विल बी 0.3 एंड सो ऑन. द अराइवल टाइम ऑफ अ बस at a bus stop is modeled by f of x x square upon 72, 0 से लेकर 6 तक, 0 अदरवाइज. फाइंड द मीडियन. तो हमें अपर और लोअर लिमिट्स दी हुई हैं. 0 से लेकर m तक x स्क्वायर अपॉन 72 की प्रोबेबिलिटी विल बी 0.5. अग्री? क्योंकि मीडियन मतलब हाफ, हाफ मतलब प्रोबेबिलिटी विल बी 0.5. x क्यूब अपॉन 3 इंटू 72, m और 0 की लिमिट से 0.5. आर यू ऑल विद मी? m क्यूब अपॉन 3 इंटू 72 इज 216. 0 डालूंगा तो 0 इज 0.5. m क्यूब इज 0.5 इंटू 216, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 108. m is cube root of 108. m is 4.76. पार्ट 2 में हमें चाहिए अपर क्वार्टाइल. तो 0 से लेकर अपर क्वार्टाइल तक x स्क्वायर अपॉन 72 is 0.75. तो ये हो गया x क्यूब अपॉन 216. अपर क्वार्टाइल 0 is 0.75. अपर क्वार्टाइल को मैं u ले लेता हूँ, u क्यूब अपॉन 216 minus 0 is 0.75. u cube is 0.75 into 216, which is 162. u is cube root of 162, 5.45. You are told to find lower quartile. 0 L, lower quartile के लिए L ले रहा हूँ. x square upon 72 is 0.25. x cube upon 216 L 0 0.25. L cube upon 216 minus 0 is 0.25. L cube is 216 into 0.25, that is 54. L is cube root of 54, 3.78. Part 4 में बोल रहा है इंटर क्वार्टाइल. इंटर क्वार्टाइल इज अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल. 5.45 minus 3.78, 1.67. लास्ट पार्ट 80th परसेंटाइल. 0 और n की लिमिट्स में x स्क्वायर अपॉन 72 is 80%, that is 0.8. x cube upon 3 into 72, n0 is 0.8. n cube upon 216 is 0.8. n cube is 172.8. n is cube root of 172.8, 5.57. प्लीज नोट करें, इसमें जो फंक्शन है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये दो हिस्सों में ब्रोकन है. एक्स स्क्वायर अपॉन 27 0 से 3 तक, 5 माइनस एक्स अपॉन 3 से 5 तक, 0 अदरवाइज. जब फंक्शन दो हिस्सों में बटा हुआ हो तो हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा मीडियन. अगर हम निकाल रहे हैं फॉर एग्जांपल, या लोअर क्वार्टाइल निकाल रहे हैं या अपर क्वार्टाइल निकाल रहे हैं, वो किस में लाई करेगा? पहले वाले फंक्शन में लाई करेगा या दूसरे वाले में लगेगा? कोई जरूरी नहीं है. इसलिए सबसे आइडियल सिचुएशन ये होती है कि जब आपके पास मल्टीपल फंक्शंस हो एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में, तो सबसे पहले जो पहला वाला है उसकी पूरी प्रोबेबिलिटी निकाल लें. अगर इसकी प्रोबेबिलिटी लेट्स से 0.5 से ज्यादा आती है तो इसका मतलब लोअर क्वार्टाइल भी इसी में लाई कर रहा है, मीडियन भी इसी में लाई कर रहा है. अगर ये 0.5 से कम आती है तो मीडियन अगले वाले में लाई कर रहा है, लेकिन हो सकता है लोअर क्वार्टाइल इस वाले में लाई कर रहा हो सकता है. इसलिए बोल रहा हूं
हो सकता है 0.2 हो उसकी प्रोबेबिलिटी, तो लोअर क्वार्टाइल भी अगले में लाई करेगा। या अगर लेट्स से पहले वाले की प्रोबेबिलिटी होती है 0.85, तो अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल, मीडियन तीनों पहले वाली इक्वेशन में लाई करेंगे। सो इन ऑर्डर टू विजुअलाइज, इन ऑर्डर टू रियलाइज, क्या करना है, आइडियल सिचुएशन ये है कि जो पहली है उसकी पूरी प्रोबेबिलिटी निकाल दो और आइडेंटिफाई करो वो 0.25, 0.5, 0.75 से कम है या ज्यादा है, ताकि हमें प्लेसमेंट पता चल जाए लोअर क्वार्टाइल कहाँ होगा, मीडियन कहाँ होगा और अपर क्वार्टाइल कहाँ होगा, एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। नोट लिख लीजिए, इफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन includes two or more functions, then in order to find the median and the quartile, we first need to identify that in which function will the median and the quartiles lie, full stop. In order to do so, we will first find the probability of the entire first function, full stop. If the result is greater than 0.5, then median will lie in the first equation. But if the result is less than 0.5, then median will lie in the second equation. Full stop. Same is the case and the process of finding the lower and the upper quartile. तो अब इस वाले सवाल में अगेन मुझे वही सारी चीजें निकालनी है, मीडियन, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले पूरी की पूरी 0 से लेकर 3 तक x² अपॉन 27 को इंटीग्रेट करूंगा। तो ये आ जाएगा x³ अपॉन 3 इंटू 27 within the limits 3 and 0. If I integrate this, x³ upon 3 into 27, 3 cube upon 81 minus 0 is 1 upon 3. That is 0.333. So realize करें that 0.333 is lesser than 0.5, यानी मीडियन अगली वाली इक्वेशन में होगा, बट इट इज ग्रेटर देन 0.25, इसका मतलब लोअर क्वार्टाइल इसी इक्वेशन में होगा। तो अगर मुझे लोअर क्वार्टाइल निकालना है तो 0 से लेकर L तक x² अपॉन 27 is 0.25, x³ अपॉन 3 into 27 that is 81, L और 0 की लिमिट्स में 0.25, L³ अपॉन 81 minus 0 is 0.25, L³ is 81 into 0.25, 20.25, L is cube root of 20.25, L is 2.73। इससे हमें ये भी पता चल गया कि मीडियन सेकंड इक्वेशन में लाई करेगा। तो मीडियन लाई करेगा पहली वाली इज 1/3 प्लस 3 और m की लिमिट्स में, दूसरी वाली दैट इज 5 minus x/3, द रिजल्ट इज 0.5। पहले वाले की प्रोबेबिलिटी प्लस 3 से m तक, ताकि m की वैल्यू आ जाए, इन दोनों को मिला के 0.5। सो दिस विल बिकम 5 minus x/3 is 0.5, which is half, minus 1/3, 1/3, 3 और m की लिमिट्स में 5 minus x, half minus 1/3 is 1/6, 1/3, 5x minus x²/2, m और 3 की लिमिट्स में is 1/6, 5m minus m²/2, 5m minus m²/2 minus 5 into 3 minus 3²/2 is half, 5m minus m²/2 minus 15 minus minus plus 9/2 is half, minus m²/2 plus 5m minus 15 minus 9/2 minus 1/2 is minus 11। LCM निकाल लें, minus m² plus 10m minus 22 is 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस 10 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर इज 100 माइनस 4 इंटू माइनस 1 माइनस 22 अपॉन 2a, माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 100 माइनस 88 अपॉन माइनस 2, माइनस 10 प्लस 3.46 अपॉन माइनस 2, minus 10 minus 3.46
अपॉन -2 -10 प्लस 3.46 डिवाइडेड बाय -2, तो एक आंसर आ गया इसका वाला 3.27 और इसका वाला आंसर आ गया -10 माइनस 3.46 डिवाइड बाय -2 इज 6.73। ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा? क्योंकि हमारी रेंज ही 5 तक है। सो 3.25 इज द मीडियन। 3.27 सॉरी। मैंने पहले वाले सेट की इंटीग्रेशन का रिजल्ट देख लिया कि वो 0.5 से कम था। दिस प्लस 3 से लेकर n तक नया वाला रिजल्ट मिला के 0.5 होना चाहिए क्योंकि मीडियन मिड पॉइंट है। सिंप्लीफाई किया, सॉल्व की, प्रोबेबिलिटी को कन्वर्ट किया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सिंप्लीफाई होते होते दो आंसर्स आ गए। एक रेंज से बड़ा है वो रिजेक्ट हो जाएगा, जो रेंज में है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर अपर क्वार्टाइल निकालना होता तो भी सेम प्रोसेस फॉलो होता। हमारे पास ऑलरेडी पहले वाले पोर्शन का हमें रिजल्ट पता है 1/3 प्लस 3 से लेकर अपर क्वार्टाइल तक 5 माइनस x/3 1/3 को बाहर निकल इज 0.75। 1/3 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 4 और 3 की लिमिट्स में 0.75 माइनस 1/3 1/3 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 4 एंड 3 की लिमिट्स u and 3 की लिमिट्स, आई एम सॉरी नॉट 4, u and 3 की लिमिट्स इज 0.75 minus 1/3 is 5/12। 3 1s are 3, 3 4s are 12, so this becomes 5u minus u square upon 2 minus 5 into 3 15 minus 9/2 is 5/4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, u आ जाएगा विच विल बी अपर क्वार्टाइल। अगली सब हेडिंग डालें, मीन एंड वेरिएंस ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। याद करें डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स में मीन कैसे निकलता था? x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x वॉज मीन, याद है? सेम यहां पे फॉलो हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x एफ एक्स इज द मीन और x बार और एक्सपेक्टेशन। याद करें वेरिएंस क्या होता था? एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस मीन का स्क्वायर, ये वेरिएंस होता था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में। यहां भी सेम हिसाब होगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एफ एक्स माइनस मीन का स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स इज 6/125 5x माइनस एक्स स्क्वायर, x lies between 0 and 5 both inclusive। find mean and variance। मीन के लिए हम क्या करेंगे? हम x मल्टीप्लाई कर देंगे और लिमिट्स लगा देंगे 0 से 5। 6/125 बाहर आ गया, 0 से 5, x इंटू 5x इज 5x स्क्वायर, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर इज माइनस एक्स। 6/125 5x क्यूब अपॉन 3 माइनस x पावर 4/4 5 और 0 के लिए। इज एवरीवन फॉलोइंग मी? 6/125 5 क्यूब अपॉन 3 माइनस 5 पावर 4/4 0 डालूंगा तो 0 ही आएगा। 6/125 5/2 ये आ गया मीन। वेरिएंस के लिए 0 और 5 की लिमिट्स में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करूंगा 6/125 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर दैट इज 5/2 स्क्वायर। 6/125 को बाहर भेज दिया, 0 और 5 की लिमिट्स में एक्स स्क्वायर 5x माइनस एक्स स्क्वायर। 6/125 0 और 5 की लिमिट्स में 5x क्यूब माइनस एक्स पावर 4। अभी तक इंटीग्रेशन शुरू नहीं करिए, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। 6/125 5x पावर 4/4 माइनस एक्स पावर 5/5 5 और 0 की लिमिट्स माइनस 0 माइनस मीन का स्क्वायर दैट इज 5/2 का स्क्वायर विच इज 25/4। 6/125 5 की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 5 की पावर 5/5 0 डालूंगा तो 0।
minus 25 upon 4. 3125 upon 4 minus 3125 upon 5. 6 upon 125. 625 upon 4 minus 25 upon 4. 15 upon 2 minus 25 upon 4. 5 upon 4. तो इसी प्रैक्टिस कर लेते हैं. A continuous random variable x has the following probability density function. 0 और 2 की लिमिट्स में kx power 4 plus 1 upon 5 will be 1. kx 5 upon 5 plus 1 upon 5x. 2 और 0 is 1. k2 की पावर 5 upon 5 plus 1 upon 5 into 2. 0 डालूंगा तो 0 हो जाएगा, is 1. 2 की पावर 5 32k upon 5 plus 2k upon 5 minus 0 is 1. 32k upon 5 is 1 minus 2 upon 5. 32k upon 5 is 3 upon 5. k is 3 upon 32. उसके बाद बोला है sketch the graph 0 और 2 की लिमिट्स में. 0 डालूंगा तो 1 upon 5 आएगा, 1 डालूंगा तो 3 upon 32 plus 1 upon 5 47 upon 160 and something like this बन जाए. Ladies and gentlemen, boys and girls, do you all agree? उसके बाद फाइंड प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक की. 0 से 1. 3 upon 32 x पावर 4 plus 1 upon 5. तो 3 upon 32 x पावर 5 upon 5 plus 1 upon 5x. 1 और 0 की लिमिट्स. 3 upon 32 into 5 is 160. x पावर 5 plus 1 upon 5x. 1 और 0 की लिमिट्स. 1 डालूंगा तो 3 upon 160 plus 1 upon 5. 0 डालूंगा तो 0. 3 upon 160 plus 1 upon 5. 7 upon 32. Show that fx has properties of probability density function. तो प्रॉपर्टी हमें ऐसे पता चलेगी कि 0 से लेकर 2 तक 3x स्क्वायर अपॉन 32 प्लस 2 से लेकर 5 तक 1 अपॉन 24 13 माइनस 2x. जब इनकी सबका सम होगा वो 1 आना चाहिए. अगर आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन सेटिस्फाई हो रही है, नहीं आ रहा है तो गड़बड़ है. सो 3 अपॉन 32 को बाहर निकाल दिया. 0 और 2 की लिमिट्स में x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 24 2 और 5 की लिमिट्स में 13 माइनस 2x. 3 अपॉन 32 x क्यूब अपॉन 3 2 और 0 प्लस 1 अपॉन 24 13x माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2 5 और 2 3 अपॉन 32 2 क्यूब अपॉन 3 माइनस 0 प्लस 1 अपॉन 24 13 5 माइनस 5 स्क्वायर माइनस 13 2 minus 2 square. Are you all with me? 3 upon 32, 8 upon 3 plus 1 upon 24. 13 into 5 is 65 minus 25 minus 26 minus 4. फाइनल बताएं कितना आ रहा है. कितना आ रहा है? 1 आ रहा है तो प्रूव हो गया. उसके बाद बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 4. x इज ग्रेटर देन 4 का मतलब है इस वाली में तो लाई करनी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 4 का मतलब है 4 से लेकर 5 तक. 4 से 5 तक इस वाली रेंज में 1 अपॉन 24 13 माइनस 2x. 1 अपॉन 24 बाहर गया. 4 और 5 13 माइनस 2x. 1 अपॉन 24 13x माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2 5 अपॉन 4. 1 अपॉन 24 13 इंटू 5 माइनस 5 का स्क्वायर इज 25 माइनस 13 इंटू 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16. 1 अपॉन 6. उसके बाद 1 से लेकर 3 तक. 1 से लेकर 3 तक का मतलब है, आप सवाल देखें 1 से 2 तक ये और 2 से 3 तक ये, यानी कि 1 से 3 तक 1 से 2 तक एंड 2 से 3 तक. 1 से 2 तक is 3x square upon 32. 2 से 3 तक 1 upon 24 13 minus 2x.
3/32 x³/3 2 से 1 तक प्लस 1/24 13x माइनस 2x² 3/32 2³/3 माइनस 1³/3 प्लस 1/24 13 into 3 minus 3 square minus 13 into 2 minus 2 square. Please put the relevant values in the calculator. 3/32 upon 7/3 plus 1/24. 13 into 3 is 39 minus 9 minus 26 minus 4 plus 30 minus 22 is 8 upon 1/3 0.552 आ रहा है मेरा। उसके बाद मीन निकालना है, दोनों इक्वेशंस को मीन में आप करेंगे x मल्टीप्लाई बाय 3x² 0 और 2 की लिमिट्स में प्लस 2 और 5 की लिमिट्स में x इंटू 1/24 13 माइनस 2x, तो ये हो गया 3/32 x³ 0 और 2 की लिमिट्स प्लस 1/24 2 और 5 13x माइनस 2x² 3/32 x पावर 4/4 2 और 0 प्लस 1/24 13x² माइनस 2x³ 5 और 2। ये वाला 3/8 बन रहा है फाइनल, प्लस ये क्या बन रहा है पूरा, ये 33/8 प्लस 39/16 इज इक्वल्स टू 45 उसके बाद आखिरी चीज मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए पहले वाले की प्रोबेबिलिटी चेक करें, क्या है पहले वाले की प्रोबेबिलिटी, पिछले वाले पार्ट में निकाली थी ना। पहले वाले की प्रोबेबिलिटी है 3/32 इंटू 8/3 0.25। पहले वाले की प्रोबेबिलिटी है 0.25, तो वो 0.25 प्लस 2 और m की लिमिट्स में 1/24 13 माइनस 2x इज 0.5, तो 2 और m की लिमिट्स में 1/24 बाहर 13x माइनस 2x² अपॉन 2 is 0.5 minus 0.25 13m minus m square minus 13 into 2 minus 2 square 1/24 is 0.25 13m minus m square minus 13 into 2 minus 4 22 cross multiply 0.25 into 24 m square minus 13m plus 6 plus 22 is 0 m square minus 13m plus 28 is 0 फैक्टराइज करें या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं 10.3 और 2.73। अच्छा जी 10.3 तो हमारी रेंज में नहीं है, सो 2.73 इज द आंसर।